Hello children, how are you? In our last class, we are discussing exercise questions. Okay, in our second chapter, which is that nutrition in animals, and we are discussing exercise questions. So all of you take your notebook and start fast. Okay, सब अपने notebook निकाल के शुरू हो जाइए. हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. Okay. So we have already discussed this all questions. Okay. Question 5, what is villi and what is their location and their function? Okay. Then we also discussed question number 6. Now we are going to discuss our question 7. अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? Question 7. तो सब क्वेश्चन लिख लीजिए. Question 7. Name the, all of you write question from your textbook. सभी textbook में से question लिख लीजिए. Name the type of carbohydrate. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Not by humans. Give the reason also. तो बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे. ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में ही दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 7. So all of you write this question and after that we will discuss answer. सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? और किसी का अगर छूट जाता है या नहीं लिख पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कौन सा क्वेश्चन छूटा है नंबर आप लिखोगे तो हम आपको we will show you again. Okay, दोबारा दिखाएंगे. So let's start our answer. देखिए बच्चों आंसर देखिए. तो सभी ने लिख लिया क्वेश्चन 7. Okay, now let's see our answer. Okay. Answer. Cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants. That can be digested by ruminants. तो कौन सा है, कौन सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं? सेलुलोज. ओके. फिर क्या पूछ रखा है आपसे कि गिव रीजन, यानी ह्यूमन बींग्स को डाइजेस्ट नहीं करते हैं. कौन कर पाता है? रूमिनेंट्स, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स ज्यादातर उसे डाइजेस्ट करते हैं. So right answer, cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants. Full stop. Ruminants have, क्या कारण है, कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं वे? Ruminants have large sac-like structure. Large sac-like structure between the small intestine and large intestine. लिख लिया? Ruminants have large sac-like structure between the स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एक लार्ज सैक होता है. ठीक है, एक राउंड राउंड हमने आपको दिखाया था डायग्राम. तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. हो गया?
फिर लिखिए, the cellulose of the food is the cellulose of the food is digested digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो पता चला क्यों ह्यूमंस उसे डाइजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सर्टेन बैक्टीरियास होते हैं इन एनिमल्स में जो उसे डाइजेस्ट करते हैं, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं. The cellulose of food is digested by the action of certain bacteria. जल्दी जल्दी लिखिए. Which are not present in humans. Which are not present in humans. लिख लिया? एक और बार दिखाते हैं आपको. Cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants. Full stop. Ruminants have large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. सभी का हो गया? हो गया तो आप यस कह सकते हो, अगर नहीं हुआ तो आप हैंड रेज कर सकते हो. ओके अगर कोई भी आंसर्स आपका छूट रहा है या नहीं कर पा रहे हो तो हैंड रेज कीजिए, हम आपको वी विल शो यू अगेन. तो आगे बढ़े, जिनका हो चुका है जस्ट राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. जिन लोगों का हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए. Why do we get instant energy from glucose? Next question. चलिए लिखिए. Why do we get instant energy from glucose? हो गया? हम बहुत धीरे धीरे दिखा रहे हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लिख रहे हो, है ना? लिखने में आसानी हो रही है ना? ओके तो आंसर देखिए. क्वेश्चन, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? आंसर, because it easily breaks because it easily breaks down in the cell with the help of oxygen
which provides instant energy to the organism. Instant energy to the organism. ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट लिखिए, glucose does not need digestion। जैसे कि हम लोग बाकी सारे वस्तुएं जब खाते हैं तो हमें क्या होता है, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, है ना, हमें डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। बट ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, it is directly absorbed into the blood. It is directly absorbed into the blood. Directly क्या होता है बच्चों, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। हो गया। ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ, दे कैन रेज योर हैंड। चलिए हो गया ना, आगे बढ़े हम, लेट्स मूव। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में ही आप लिख लीजिए क्योंकि उसके लिए स्पेस है। 9th क्वेश्चन, सभी टेक्स्ट बुक में अपना 9th क्वेश्चन देखिए। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन, तो कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट का जो है सिस्टम, कौन सा इसमें इन्वॉल्व है, हमें वो लिखना है। तो आप क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक लीजिए और उसके सामने सामने आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए। क्लियर? ओके, फर्स्ट वन, फर्स्ट देखिए, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पर होता है बच्चों, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड के सामने लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लिया। नेक्स्ट वन, सेकंड, चूइंग ऑफ फूड। चूइंग ऑफ फूड कहां पर होता है, बक्कल कैविटी। चूइंग ऑफ फूड बुक में ही लिख लीजिए, जो स्पेस छूटा हुआ है आपके बुक में उसमें लिख लीजिए। चलिए, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टोमक कहां पर होता है, स्टोमक। हो गया। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हो गया। ओके, नहीं हुआ है तो हम आपको दिखा देते हैं दोबारा। कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप नंबर लिख सकते हो, नहीं तो यही क्वेश्चन है तो हम लोग जो है इसी को दिखाते हैं। इसी तरह आप हैंड रेस कीजिएगा, तभी क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आपका हो चुका है। ओके, कोई भी बात हो तो क्या कीजिएगा आप,
लिख लीजिएगा। चलिए, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। और कोई बात आपको कहना है तो आप क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। Chewing of food, buccal cavity. Killing of bacteria, stomach. Okay. Complete digestion of food, small intestine. Formation of fecus, large intestine. इतना हो गया ना? ओके, जिन्होंने हैंड रेस किया उनका हो चुका है तो थंब दे सकते हो। ओके, जब हैंड रेस करते हो तो हो गया तो यस या फिर थंब का कोई भी निशान दे सकते हो, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका हो गया है। या फिर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो वो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, हम दिखाएंगे आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब अपना 10th क्वेश्चन लिख लीजिए नोटबुक में। राइट वन, राइट वन सिमिलैरिटी, write one similarity and one difference, and one difference between the nutrition in amoeba, nutrition in amoeba and human beings। तो आपको एक सिमिलैरिटी लिखना है, एक जैसा जो है, और एक डिफरेंस जो विभिन्नता। ठीक है, किसमें लिखना है? बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा और जो ह्यूमन बींग्स के जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस लिखना है। तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आप बुक में से लिख सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए स्पेस भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, आंसर देखें। चलिए, फर्स्ट आप लिखिए सिमिलैरिटी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों? सिमिलैरिटी लिखना है। सिमिलैरिटी, both humans and amoeba, both humans and amoeba require food for the cellular processes, the cellular processes। तो दोनों को क्या चाहिए? उनके प्रोसेस के लिए फूड चाहिए। बोथ ह्यूमंस एंड अमीबा रिक्वायर फूड फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस। चलिए, इतना हो गया ना? दैट इज सिमिलैरिटी। ये जो हमने दिखाया वो क्या है बच्चों? सिमिलैरिटी है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस। अब उनमें क्या डिफरेंस है? ओके, डिफरेंस क्या है अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स में?
लिखिए डिफरेंस। अमीबा टेक्स फूड बाय, अमीबा टेक फूड बाय, कैसे लेते हैं फूड? अमीबा टेक्स फूड बाय सूडोफोडिया, जो उनकी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना सूडोफोडिया, उससे क्या करते हैं वो फूड लेते हैं। अमीबा टेक्स फूड बाय सूडोफोडिया। And digests it in, and digests it in their, क्या करते हैं वो फूड सूडोफोडिया से लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं डाइजेस्ट करते हैं। एंड डाइजेस्ट इट इन देयर, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं वहां पर ही उसको डाइजेस्ट करते हैं। वाइल ह्यूमंस ईट फूड, जो ह्यूमंस होते हैं हम लोग जो मनुष्य होते हैं क्या करते हैं, ह्यूमंस ईट फूड which gets digested at, which gets digested at different parts of the digestive tract, जो हमारे जो है डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है डाइजेस्ट होता है। अमीबा का क्या है सूडोफोडिया में ही वो फूड लेता है और वहीं पर डाइजेस्ट होता है। पर ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस है बच्चों, ईट फूड which gets digested at different parts of the digestive tract। चलिए हो गया ना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन 11 देखते हैं, जो मैच द, ठीक है हुआ नहीं है, वी के नमासाय हुआ नहीं है। आप लोग लिख लीजिए यही क्वेश्चन नहीं हुआ। हम एक और बार आपको दिखा देते हैं। ओके, सबसे पहले जो है सिमिलैरिटी, ठीक है सिमिलैरिटी, बोथ ह्यूमंस एंड अमीबा require food for the cellular processes। और डिफरेंस देखिए, अमीबा टेक्स फूड बाय, अमीबा टेक्स फूड बाय सूडोफोडिया and digests it in, digests it in there, क्या करते हैं वहां पे डाइजेस्ट करते हैं। while humans eat food which gets digested at different part of digestive tract। चलिए आपका हो गया ना, जिन्होंने हैंड रेज किया था हो गया तो यस बोल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम जो है अगला क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। अभी हमारा एक एग्जाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चों समय कम है। तो हम लोग क्या करेंगे एमसीक्यू पूछेंगे आपसे, और आप सभी अपने नोटबुक के साथ या पेपर जिसमें भी आप लिखते हैं उसके साथ तैयार रहिए। ठीक है, हम लोग अभी जो है हमारा एग्जाम शुरू करते हैं। और अगली क्लास में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पर बंद कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी एमसीक्यू करेंगे। तो सब लोग अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए। तैयार हो? ओके, शुरू करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। 1, पहला क्वेश्चन, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट जो है कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है? ए स्टोमक, बी माउथ, सी स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर एबीसी लिख लीजिए। हो गया?
आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वन। ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस और आंसर जो है बिल्कुल सही सही लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, द डैश ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। जो है कौन इसमें से चू किया हुआ ग्रास वापस लेकर आता है और क्या करते हैं, उसको दोबारा चबाते हैं। पहले क्या करते हैं, निगल जाते हैं, फिर दोबारा उसको चबाते हैं। ए रूमिनेंस, बी डोमिनेंस, सी नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डैश डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। जो है इसमें से कौन फूड को फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। ए काउ, बी गॉट, सी अमीबा। ए काउ, बी गॉट, सी अमीबा। जल्दी से आंसर लिखिए। ओके, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाटर फ्रॉम द water from the undigested food is absorbed mainly in the water from the undigested food is absorbed mainly in the। जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर सब होता है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं। ए स्मॉल फूड पाइप, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन। हो गया, डन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, bile plays an important role in the bile plays an important role in the digestion of dash। क्या डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए प्रोटीन्स, बी फैट्स, सी कार्बोहाइड्रेट। हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the finger like projections in the small intestine called। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे क्या कहते हैं। ए कैनिन्स, बी विलाई, सी सूडोफोडिया। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हो गया। नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेवेंथ, वाई शुड यू ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग। क्यों करते हैं हम लोग खाना खाने के बाद ब्रश। ए टू कूल डाउन द माउथ, बी to remove food particles and reduce bacteria, C to taste the food better। किस लिए हम लोग ब्रश करते हैं। कोई भी किसी को नहीं दिखाएगा और कोई किसी का देखेगा भी नहीं, ठीक है। अपना आंसर स्वयं लिखिएगा और हम देखते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स कौन स्कोर करता है। क्वेश्चन 8, व्हाट शुड बी गिवन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। जिनको डायरिया हुआ होता है उन्हें क्या देना चाहिए। ए कोल्ड ड्रिंक्स,
बी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS, सी हॉट टी। ओके नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट can ruminants digest that human cannot? जो ruminant digest करते हैं जो human digest नहीं कर पाते हैं। A starch, B glucose, C cellulose। हो गया। What is the first set of teeth called? जो पहला set of teeth होता है उसे क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, बेबी टीथ, मिल्क टीथ। जल्दी से आंसर लिखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं, तो सब तैयार रहिए। ओके, तो श्रीराम सर प्लीज अनम्यूट देम। यस मैम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आंसर दो। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, कहां पर डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोलिए सेकंड का, द डैश ब्रिंग बैक सैलड ग्रास इनटू। कौन है बच्चों? हाँ, जोर से बोलिए। बिल्कुल सही, रूमिनेंस, वेरी गुड। इसी तरह एक साथ बोलिएगा। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। थर्ड वन, डैश डाइजेस्ट फूड इन द फूड वैक्यूल। कौन डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल में? हाँ, कौन है? एक और बोलिए। अमीबा, सी। ओके, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड, कहां पर एब्सॉर्ब होता है लास्ट में? या करेक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Bile plays an important role in the digestion of? किसको वो करता है बच्चों? किसको करता है? बोलिए। हाँ, जिन्होंने गलत लिखा है वो। ओके, फैट्स, प्रोटीन, सब। What are the finger-like projections in the small intestine? Villi, very good. 7th one. Why should you brush your teeth after eating? Yeah. B, to remove food particles. Very good. Agla. Why should be given to a person suffering from what should? क्या देना चाहिए बच्चों डायरिया से जो सफर करते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन, ORS, वेरी गुड, ORS। 9th one, which type of carbohydrate जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं? हाँ, सेलुलोज, बिल्कुल सही बोला। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को क्या कहते हैं बच्चों? या मिल्क टीथ। तो आज मैं होप करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया है। तो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।